بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العلی العظیم. محترم عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ کی 54 نمبر کی آیت میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں: اے ایمان والو، اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، یعنی مذہب اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لائے گا، یعنی ایسے لوگوں کو لائے گا کہ جن سے اللہ بھی محبت کریں گے اور یہ لوگ اللہ سے بھی محبت کریں گے. اور ان کی صفت اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے اور غیر ایمان والوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنے ایمان کی نعمت کی اہمیت کو بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایمان دیا ہے اس ایمان کو بچا کر لے کر جانا، اور میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کے لیے ہمیں پوری زندگی کتنا متفکر اور کتنا بے چین ہونے کی، اور اس کے لیے کن تدبیروں کو اور کن اعمال کو کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف اللہ تعالی ہمیں متوجہ فرماتے ہیں. ٹھیک اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کے اندر اپنے ایمان کے اوپر چلنا، یعنی دین کے اوپر ایمان والوں کو چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا کہ ہاتھ میں انگارہ رکھنا. یعنی ایک آدمی ہاتھ میں انگارہ کتنی دیر رکھ سکتا ہے؟ بہت زیادہ 2-4 منٹ رکھ سکتا ہے، اس کے بعد اس کو اپنی چمڑی کے اندر اور اپنے ہاتھ کے اندر جلن محسوس ہوگی. اسی طرح میری امت کے اوپر ایک زمانہ وہ آئے گا کہ امت کے اندر فتنے اتنے رونما ہوں گے اور اتنے ظاہر ہوں گے کہ ان فتنوں کی وجہ سے انسان اپنے ایمان کی ہر جگہ حفاظت نہیں کر پائے گا، بلکہ کہیں نہ کہیں اس کا ایمان ڈاواڈول ہو جائے گا اور کہیں نہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، اللہ کی نافرمانی کے کام میں مبتلا ہو جائے گا، وہ برائی کی دلدل میں پھنس جائے گا اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں مبتلا ہو جائے گا. ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان اور کفر کی خاتمے کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ ایمان کے ماحول میں پیدا ہونا اور ایمان پر مرنا. دوسرا، کفر کے ماحول میں پیدا ہونا اور کفر پر مرنا. تیسرا، ایمان کے ماحول میں پیدا ہونا اور کفر پر مرنا، اسی کو ارتداد بولتے ہیں، یعنی مرتد ہونا بولتے ہیں، یعنی مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لینا بولتے ہیں. اللہ امت کی ارتداد سے حفاظت فرمائے. چوتھی قسم یہ ہے کفر کے ماحول میں پیدا ہونا اور ایمان کی حالت میں مرنا. اس حدیث کے ضمن میں محدثین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ایمان کی کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ نے ایمان دیا ہے وہ ایمان بچا کر اس دنیا سے لے کر جانا اور میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہو، یعنی ایمان پر، اور کرنے والی موت مجھے اور آپ کو نصیب ہو. اس کے لیے مجھے اور آپ کو کتنی محنت کرنی پڑے گی، کتنی فکریں کرنی پڑے گی. اپنے آپ کو ہر وقت اس خوف میں رکھنا پڑے گا کہ اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اس کے لیے ہر وقت اللہ سے مانگنا پڑے گا. ہم لوگ تو مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے کلمہ دے دیا ہے، ایمان دے دیا ہے، ہم لوگ تو مسلمان ہیں، تو جنت تو ہمارے لیے بنائی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا خاتمہ، اور جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوں گے اس وقت ایمان کے ساتھ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے.
इसीलिए इस हदीस के ज़िमन में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि वो दुनिया के अंदर सिर्फ नबियों की मुक़द्दस जमात है कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने ये गारंटी दे दी है कि इनका खात्मा तो ईमान पर होगा। बाकी किसी और की कोई गारंटी नहीं है कि वो इस दुनिया से जब जाएंगे तो वो ईमान के साथ जाएंगे और ईमान की हालत में मरेंगे, इसकी किसी की गारंटी नहीं है। उसके लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। वो फितनों के ज़माने में हमें दीन के माहौल में रहना पड़ेगा, दीन के कामों में लगना पड़ेगा, अच्छे अमाल करने पड़ेंगे, बुरे अमाल से अपनी जिंदगी को बचाना पड़ेगा। इसीलिए फरमाते हैं कि हर जमाने के ईमान वालों को अपने ईमान के बारे में फिक्र करने की जरूरत है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ईमान वाला वो है जो अपने ईमान के बारे में डरता है, और मुनाफिक वो होता है जो अपने ईमान के बारे में मुतमईन रहता है। हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, जब इनसे कोई मुलाकात के लिए जाता था और जब वो मुलाकात करने वाला मेहमान जब रुखसत होता था तो वो रुखसत होने वाले मेहमान से हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, मेरे हक में दुआ करना कि अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर कर दे। अल्लाह अकबर। वक्त के जिंदा जावेद वली और फकीह गुजरात, अल्लाह ताला ने इतना जबरदस्त इल्म अता फरमाया था, ये अपने ईमान के बारे में इतनी फिक्र करते थे। आप कुरान को उठाओ, कुरान में नबियों ने अपनी औलादों के बारे में ईमान की फिक्र की है और खुद अपने ईमान के बारे में फिक्र की है कि जबकि इनका खुद का खात्मा तो ईमान पर होना यकीनी था, अल्लाह ताला ने इनको वादा कर दिया था, फिर भी जो है वो अपने ईमान के बारे में और अपनी औलाद के ईमान के बारे में फिक्रमंद रहते थे और हर वक्त अल्लाह से जो है इस बारे के अंदर जो है अल्लाह से इल्तिजा किया करते थे, दरख्वास्त किया करते थे। सूरह यूसुफ के अंदर 101 नंबर की आयत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से ये इल्तिजा करते हैं, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, ये अल्लाह मुझे मुसलमान होने की हालत में मौत अता फरमा और नेक लोगों की जमात में मुझे शामिल फरमा। सूरह इब्राहिम के अंदर 35 नंबर की आयत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं, वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, ए बारी ताला मुझे भी और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। आप सूरह बकरा की 133 नंबर की आयत को उठाइए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से दरख्वास्त करते, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनी मा ताबुदून मिन बादी, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो इन्होंने अपने बेटों को जमा किया और अपने बेटों से कहा कि मेरे मरने के बाद और मेरी इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसकी पूजा करोगे? तो वो कहते हैं, क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइक, कि हम तो आपके माबूद की पूजा और जो है इबादत करेंगे और आपके बाप दादाओं की जो है माबूद की और जो है इलाह की इबादत करेंगे। एक नबी अपनी औलादों के बारे में और उनके ईमान के बारे में कितना बेचैन है, जबकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खुद नबी है। इनके वालिद मोहतरम हजरत इसाक अलैहिस्सलाम खुद नबी है। इनके दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद नबी है और इनके चचा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुद नबी है। इनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी है। तो जो है खुद भी नबी, वालिद भी नबी, दादा भी नबी, चाचा भी नबी, बेटा भी नबी, फिर भी अपनी दूसरी औलाद के बारे में बेचैन है कि मेरे मरने के बाद कहीं फुतने में मुब्तला ना हो जाए और अपने ईमान से हाथ धो ना बैठे। और मैं और आप कितने मुतमईन हैं? लोग जहालत की वजह से, कम इल्मी की वजह से क्या बोलते हैं, આપણે तो मुसलमान છે, जन्नत तो આપણા માટે જ અલ્લાહે બનાવી છે। यूं नहीं मिल जाएगी, यूं ही नहीं मिल जाएगी। अपने आप को अल्लाह से जोड़ना पड़ेगा। मुझे और आपको अल्लाह को राजी करने वाले कामों में अपने आप को लगाना पड़ेगा। मुझे और आपको नेकी के कामों में लगाना पड़ेगा। मेरा और आपका ताल्लुक अल्लाह के घर से मजबूत हो जाए, इसके लिए फिक्रें करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे ईमान वालों का असल जो पावर जनरेट जो चीज करती है वो मस्जिद है। अल्लामा अब्दुल वहाब शहरानी रहमतुल्लाह अलैह ये बात कहते हैं कि मुत्तकियों और परहेजगारों की जो जगह है वो मस्जिदें हैं।
जिन लोगों ने मस्जिदों से अपना ताल्लुक कायम कर लिया और जिन लोगों ने मस्जिदों को अपना घर बना लिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके बारे में ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इनको जो है राहत, चैन, सुकून अता फरमाएंगे और अल्लाह ताला पुल सिरात के ऊपर से इनको आसानी के साथ पार कर देंगे, गुजार देंगे, उसकी अल्लाह गारंटी देते हैं। जिनका ताल्लुक किससे? मस्जिदों से। हजरत अबू सिद्दीक अज़दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मस्जिदों में बैठने की आदत डालो, क्योंकि मुझ तक ये बात पहुंची है कि नबियों की बैठने की जगह वो मस्जिदें थी। सुभान अल्लाह, मस्जिदों में बैठने की जगह ये नबियों की जगह हुआ करती थी। लेकिन आज अल्लाह माफ फरमाए, उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा तबका और खुसूसन नौजवानों का तबका वो है जिन्होंने अपनी बैठकें मस्जिदों के बाहर और इसी तरीके से नुक्कड़ों के ऊपर और न जाने शहर के कैसे कैसे कोनों के अंदर रखी है, जहां घंटों गुजार देते हैं। सेहत है, तंदुरुस्ती है, तवानाई है, कुव्वत है, फुर्सत है, वक्त है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी मेरे और आपके कदम जो है मस्जिद की तरफ नहीं उठते हैं। अल्लाह के फरीजे को अंजाम देने के लिए हम 5 वक्त की नमाज के लिए वुजू बनाकर उस मस्जिद की तरफ नहीं आते हैं और उस मस्जिद के अंदर आकर अल्लाह को राजी करके सरबजद सुजूद होकर और जो है अल्लाह के फरीजे को अंजाम देकर, हम अल्लाह के फरीजे को अंजाम देकर अपने दिलों को सुकून पहुंचाने के लिए तैयार नहीं। और अल्लाह माफ फरमाए, उम्मत का 80% तबका वो है, 80% लोग वो है सच जो जुमा में नमाज के लिए आते हैं और वो जुमा के अंदर 2 रकात पढ़कर चले जाते हैं। और वो पुरानी साल से हमारा ये तरीका है, ये हमारी रविश है कि हम देर से आएंगे और 2 रकात पढ़ के जल्दी चले जाएंगे। कासिमाबाद के नौजवानों, कासिमाबाद के तमाम मुसल्लियों, आज ये अहद करो कि इंशाअल्लाह आज जो हम अल्लाह के घर में आए हैं तो 14 रकात पूरी पढ़कर जाएंगे और कल से नहीं बल्कि आज से अपने आप को मौत तक 5 वक्त का नमाजी बनाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी मेहनत का मंशा ये है कि हम अल्लाह के घर से मेरा और आपका ताल्लुक और कनेक्शन मजबूत हो जाए। आज के इस फितने के दौर में मोबाइल के अंदर अगर चंद घंटों के लिए नेटवर्क चला जाए तो इंसान परेशान हो जाता है, बदहाल हो जाता है कि भाई कब ये नेटवर्क आएगा, मेरा इंटरनेट चालू होगा, मैं गेमिंग खेलूंगा, मैं फेसबुक चलाऊंगा, मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगा और न जाने लग़वियात और बेकार चीजों में अपना वक्त जाया करूंगा। लेकिन मेरा और आपका जो है ताल्लुक और कनेक्शन अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से कई सालों से, कई मुद्दतों से जो है टूटा हुआ है। आज उस कनेक्शन को जोड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं। वो जोड़ने का वक्त आ गया है। हजरत उम्मे दर्दा रदी अल्लाह अन्हा अपने शौहर हजरत अबू दर्दा रदी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाती है, जब इनको खबर मिलती कि फला शख्स का इंतकाल हो गया है और जब इनको पता चलता कि फला शख्स का इंतकाल हो चुका है और उसके जनाजे को देखते हैं और वो अगर अच्छी हालत में मरा हुआ है, यानी उसका खात्मा बिल खैर हुआ है, तो हजरत अबू दर्दा रदी अल्लाह अन्हु ये कहते थे कि मरने वाले को ये अच्छी मौत मुबारक हो, काश के उसकी जगह मैं मर जाता। तो इनकी बीवी हजरत उम्मे दर्दा रदी अल्लाह अन्हा इनसे कहती है, आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो हजरत अबू दर्दा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते कि ए बेवकूफ, तुझे पता नहीं है कि आदमी सुबह की हालत में मोमिन होता है लेकिन शाम को जो है मुनाफिक भी हो सकता है, वो अपने किसी अमल की वजह से। तो अगर मेरा खात्मा बिल खैर हो गया, अच्छी मौत आ गई, तो ये मेरे लिए बहुत सस्ता सौदा है। आज ये वो दौर है। इसलिए मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई कि नेक आमाल करने में जल्दी करो, इससे पहले कि वो फितने वजूद में आ जाए कि जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह आएंगे। और जब वो फितने जाहिर होंगे तो वो वक्त होगा कि एक आदमी सुबह को मोमिन होगा तो शाम को जो है वो काफिर हो जाएगा, और जो आदमी शाम को मोमिन होगा तो वो सुबह इस हाल में करेगा कि वो काफिर होगा। और कुछ लोग वो होंगे जो दुनिया की चंद कोड़ियों की खातिर जो है अपने ईमान के सौदे कर बैठेंगे।
ہم نے 2011 میں وقت لگایا اونگول کے اندر. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ عیسائی لوگ خریستی مذہب کی اتنی زبردست محنت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو صبح میں کلمہ پڑھنے والے تھے اور دوپہر میں اور پورے دن میں ان کے اوپر کیا محنت ہوئی کہ اس محنت کی نحوست کی بنیاد پر انہوں نے شام کو عیسائی مذہب اختیار کر لیا. وہ جاب کی لالچ، وہ نوکری کی لالچ، وہ میرج اور شادی کی لالچ، وہ مکان کی لالچ، وہ میڈیکل خرچے کی لالچ، اور ان لالچوں میں آ کر یہ لوگ اپنے ایمان کے سودے کر بیٹھتے ہیں. حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم نے اپنی کتاب حدیث کی اصلاحی مضامین کے اندر یہ حدیث کو نقل کیا ہے کہ جب قرب قیامت کا یعنی قیامت کے قریب آنے کا جب زمانہ آئے گا تو اس امت پر ایک فتنہ یہ آئے گا کہ لوگ ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے، ٹینشنوں میں زندگیاں گزاریں گے، چین سکون راحت زندگیوں سے ختم ہو جائے گا، اور اس وقت لوگ بھی جو ہے ایسے اعمال میں مبتلا ہو جائیں گے کہ اپنے ایمان کے سودے کر بیٹھیں گے. یہ وہ وقت ہیں کہ جہاں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. ڈپریشن کے موقع کے اوپر سب سے زیادہ اپنے آپ کو عبادتوں سے منسلک کرو، دین کے کاموں سے منسلک کرو، دین کے کاموں سے جڑ جاؤ، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، پابندی نمازوں کی کرو، پابندی قرآن کی تلاوت کی کرو، پابندی دعاؤں کی کرو، آہوزاری کی کرو، اپنے آنسوؤں کو اللہ کے سامنے بہانے کی کرو. اور اس موقع کے اوپر اپنے پیسوں کا غلط استعمال نہ کرو، اپنی جوانی کا غلط استعمال نہ کرو، اپنی صحت کا غلط استعمال نہ کرو. یہ اصل ہے. 2017 کے بعد جب یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا، ایک نوجوان میرے پاس آئے جنہوں نے داڑھی اس وقت شروع میں رکھی تھی، اور انہوں نے مجھ سے آ کر کہا مفتی صاحب ہم لوگوں نے جو ہے اپنا کورس پورا کر لیا دنیاوی لائن سے، اور اب ہم لوگ جو ہیں کمپنی کے اندر جاب کے لیے درخواست رکھتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، تو وہ ہماری داڑھی کو دیکھ کر ہمیں منع کر دیتے ہیں کہ بھئی داڑھی ہے تو آپ کو جاب نہیں ملے گی. تو ہم لوگ اتنی ڈگری حاصل کیے ہوئے ہیں کہ وہ ڈگری کی وجہ سے ہم کو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ آج ہماری ڈگری، ہماری صلاحیت، ہماری اسکل اور ہمارے ٹیلنٹ کو لوگ ٹھکرا دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے، تو اس وجہ سے مجھے جاب نہیں مل رہی ہے. تو کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، میں سوسائڈ کر لوں. میں نے اس وقت ان کو جو ہے پش کیا، ہمت دی کہ یہ وہ حالات ہے کہ تمہارے ایمان کو اور دنیا کے جو ہے مفاد کو اور فائدے کو، ان دونوں کے درمیان میں تمہارا امتحان ہوتا ہے. شیطان کے بہکاوے میں مت آنا، صبر سے کام لینا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، صدقہ کرنا، انشاءاللہ اللہ تمہارے لیے راہیں کھولے گا، اور وہ وقت آئے گا کہ اللہ عزت کے ساتھ تم کو جاب دے گا. پھر وہ چند مہینوں کے بعد وہ مجھے خوشخبری ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی، صبر سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی جاب عطا فرمائی کہ وہ اسی کمپنی میں آج بھی جاب کر رہے ہیں الحمدللہ. اس لیے اپنی اولادوں پر دینی لائن سے محنت کرو کہ دین پہلے ان کی زندگی کے اندر گٹھی کی طرح آ جانا چاہیے. دین کے ساتھ اور دینداری کے ساتھ وہ دنیا کی کوئی ایجوکیشن حاصل کرے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، وہ وکیل بنے، تو جب بھی اس کے اوپر حالات آئیں گے وہ اپنے ایمان سے ڈگمگائے گا نہیں. علامہ ابن نجم مصری رحمت اللہ علیہ البحر الرائق میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ایمان سے پھر جانا یہ پیدائشی کفر سے زیادہ خطرناک ہے. اسی لیے آج دعوت و تبلیغ کی نسبت پر ہمارے یہاں وقتاً فوقتاً جو جوڑ ہوتے ہیں، عمومی طور پر جو اجتماعات ہوتے ہیں، ہمارے بزرگوں کا منشا یہ ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جہاں ٹکڑوں کے اندر یہ اجتماعات اور حلقوں کی شکل میں ہوتے ہیں، وہاں 100% وہ طبقہ پہنچے اور ایک اچھی نیت کے ساتھ پہنچے کہ میرا اجتماع میں جانے کا مقصد کیا، تاکہ میرے ایمان اور اعمال کی حفاظت ہو، اور میرے اندر ایمان اور اعمال کے اعتبار سے جو کمزوریاں ہے اس کو میں دور کروں. ان اللہ والوں کی باتوں کو سن کر خالی گھوم پھر کر وہاں سے
होटलों का चक्कर लगाकर आने का नाम इज्तिमा नहीं है। सबसे पहले तो अपनी नीयतों को दुरुस्त करेंगे कि हम इज्तिमात में जाते क्यों हैं। हमें अपने ईमान को पावर देने के लिए, हमारे अपने अमाल में जो कमजोरियां हैं उसे दूर करने के लिए मैं अल्लाह वालों की बातों को सुनूंगा, मजमों में शरीक होऊंगा, मजलिसों में बैठूंगा और वहां से कुछ लेकर आकर मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा। वरना आज अल्लाह माफ फरमाए, हमारा एक बहुत बड़ा तबका हमारे इस इलाके का ये है कि जिनके जिस्म पर सुन्नती लिबास है, सुन्नती दाढ़ी है, सुन्नती कुर्ता पायजामा है, टोपी लगी हुई है, लेकिन इनके अमाल देखो तो वो जुए में लगा हुआ है, सूद पर पैसा लेने देने में लगा हुआ है, वो जुए में लगा हुआ है, जिनाकारी और बदकारी में लगा हुआ है। न आंखों की हिफाजत है, न शर्म की जगह की हिफाजत है, न हराम की जगहों से हिफाजत है। ये क्यों है? क्योंकि हमारे ईमान की कमजोरियां हैं। ईमान इसका नाम नहीं है कि हमारा लिबास जो है सुन्नती हो गया। इत्तक़िल महारिम तकुन अबदन नास, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में सबसे बड़ा वली और तुम में सबसे बड़ा इबादत गुजार वो है जो अल्लाह की हराम की हुई चीजों से अपने आप को बचाए। बैठकर पानी पी लेना ये अल्लाह का वली होने की अलामत नहीं है। इसीलिए हमें इस बात की जरूरत है कि हम इस बात को समझें कि इस जमाने के अंदर जो है अपने ईमान को बचाना और अपने ईमान को बचाकर लेकर जाना कितना जरूरी है। वाक़िया किताबों में लिखा है, हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु ये बात इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स ईसाई था, उसने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद सूरे बकरा और सूरे आली इमरान को उसने याद कर लिया और वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मुंशी बन गया था। यानी जो अल्लाह के नबी कहते थे वो बातें लिख लिया करता था, लेकिन फिर वो वापस मुर्तद होकर ईसाई बन गया। जब वो ईसाई बन गया तो उसने अपनी जुबान से एक जुमला कहा, वो जुमला ये था कि नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना इल्म था जितना वो मुझसे लिखवाते थे, उससे ज्यादा और कुछ भी इल्म नहीं था। ये गुस्ताखी की अल्लाह के नबी की शान में। उस वक्त उसका इंतकाल हो गया, ईसाई होने की हालत में इंतकाल हुआ। लोगों ने उसको दफन कर दिया। दूसरे दिन देखा तो उसकी बॉडी जो है कब्र के बाहर रखी हुई थी। तो उसके साथियों ने कहा कि नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का काम है। क्यों? कि इसने इसके मजहब को छोड़ दिया था। इन लोगों ने दूसरी कब्र उससे ज्यादा गहरी खोदी, ऊंडी खोदी और उसमें दफन किया। दूसरे दिन देखा तो वो वापस कब्र, बॉडी जो है कब्र से बाहर आ गई थी। दूसरे दिन भी इन लोगों ने यही बदगुमानी की कि ये तो नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का काम है। तीसरे दिन इनकी जितनी ताकत थी उतनी ऊंडी और इतनी गहरी इन्होंने कब्र खोदी और उसमें उसको दफना दिया। तीसरे दिन वापस जो है वो बॉडी बाहर आ गई। तो फिर इन लोगों ने सोचा कि ये जो है किसी इंसान का काम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब है। तो देखो एक छोटी सी चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सोची, जिसकी नहुसत की वजह से अल्लाह ताला ने उसको अजाब में मुब्तला किया और कब्र से बाहर उसकी मैयत आ गई। इसी तरह एक और वाकया जो है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मनहजुल आबिदीन में नकल किया है। हजरत फुज़ैल बिन अयाद रहमतुल्लाह अलैह का एक शागिर्द था जिसके इंतकाल का वक्त करीब आया, तो वो उसके पास पहुंचे और उसके सरहाने यानी सर के हिस्से में बैठकर जो है उसके सामने सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करने लगे। तो उनके शागिर्द ने मना कर दिया कि तुम जो है सूरह यासीन की तिलावत मत करो। तो खामोश हो गए। फिर उसका मौत का वक्त करीब आया, सकरात का आलम आ गया, तो जो है उसको कलमे की तलकीन करने लगे, भाई कलमा पढ़ लो, तो कि यह कलमा भी मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। आखिरकार बगैर कलमे की मौत मरा। हजरत के ऊपर इतना सदमा हुआ कि 40 दिन तक हजरत रोते रहे कि आखिर ये क्या माजरा हुआ। चंद दिनों के बाद उसको ख्वाब में देखा तो लोग उसको घसीट कर जहन्नम में ले जा रहे हैं। पूछा कि तुम तो मेरे शागिर्दों में सबसे अच्छे शागिर्द थे, आखिर अल्लाह ताला ने अपनी पहचान और मारिफत तुझसे क्यों छीन ली? तो कहा कि 3 काम मैं दुनिया में करता था। एक काम में लोगों की चुगलियां करता था, यानी इधर की बात इधर मसाला डाल के जो है दोनों में आपस में लड़ाई, नफरत और दुश्मनी फैलाने के लिए करता था, जैसे आजकल लोग करते हैं।
बताया कुछ और जाता है, सामने वाले को कुछ और बताते हैं, बदगुमानी पैदा होती है, बहुत खतरनाक चीज है। दूसरा, मैं अपने साथियों में बहुत हसद करता था, जलन करता था, जैसे आजकल लोग अपनी अपनी लाइन के लोगों में एक दूसरे पर जलन और हसद करते हैं। मैं कई सालों से काम करता हूं, ये कुछ सालों से आया है और मेरे से आगे चला गया, मेरे से आगे निकल गया, तो ये हसद की बीमारी बड़ी खतरनाक है। और तीसरा काम था कि मुझे एक बीमारी लायक हुई तो मैं जो है हकीम के पास गया और कहा कि मेरी ये बीमारी है। तो हकीम ने ये कहा कि तेरी ये बीमारी उसी वक्त दूर हो सकती है जब तू साल में एक मर्तबा नशा करेगा, यानी शराब पिएगा, दारू पिएगा, तो ये बीमारी दूर हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है। तो कहा कि मैंने फिर वो काम कर लिया। अस्तगफिरुल्लाह, इसने अल्लाह की हराम की हुई चीज को हलाल समझ लिया। शराब हराम है, तो इन तीन चीजों की नौसत की वजह से अल्लाह ताला ने उसका खात्मा बिल खैर नहीं हुआ और वो जो है ईमान के ऊपर उसकी मौत नहीं हुई और बगैर कलमे की मौत मरा। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें भी अपने ईमान की हिफाजत करने की जरूरत है, हमें भी अपने ईमान को बचाने की जरूरत है और उसके लिए जद्दोजहद मेहनत करने की जरूरत है। आज देखो चंद दिनों के अंदर जो है अब ये रमजान का बड़ा मुबारक महीना शुरू होने वाला है और आज भी हमारी मस्जिद वीरान है, गैर आबाद है। ये सिर्फ जुमा में ये मजमा नजर आता है, आले दिन हमारा माहौल देखो, फजर की नमाज का माहौल देखो कि फजर की नमाज में कितने गिने चुने है ना नमाजी नजर आते हैं। और ये दावत की मेहनत, मकतब की मेहनत, इन सब की मेहनत का मंशा ये है कि उम्मत के अंदर अमल जिंदा हो जाए। इसलिए तमाम साथी इस बात की फिक्र करें कि हम भी जो है अपने ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे और जो है नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करेंगे और इसी तरीके से ये दीन की निस्बत पर जितने भी जोड़ इज्तिमात वगैरह होते हैं उन सब में हम सब भी पहुंचेंगे, अपनी औलादों को भी ले जाएंगे, रिश्तेदारों को भी ले जाएंगे, पड़ोसियों को भी ले जाएंगे और पूरे महल्ले वालों को लेकर जाने की एक उमूमी फिजा कायम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की और जो है पूरी उम्मत मुस्लिमा की ईमान और अमल की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको खात्मा बिल खैर और कलमे वाली मौत नसीब फरमाए। ई दुआ अज़मन व अज़ जुमला जहां आमीन बाद व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।